किशोर, आई विल आंसर योर क्वेरी आफ्टर द at the end of the class. ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1961 is the law which is in practice in UK for now. It is the latest law or the law with the latest amendment. ये यूके में हो रहा है यूज, जैसे हम इंडिया में 1948 का फैक्ट्रीज एक्ट को यूज करते हैं, यूके के अंदर में फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1961 को यूज किया जाता है. नाउ many times this question has appeared in the exam. The Factory Act is more than 100 years old. Now understand, in India, the history of industrial relation, labor legislation is 125 years old in India. The Factories Act is 100 years old, and the trade union history is your 50 years old. Now remember this, there can be a question. So it was the first time the cotton textile factory which was set up in Bombay in 1854. So basically 1854, 55, these are the numbers which are given different ways in the different groups, different books. But just remember 1855 basically as the year when the first cotton textile factory was formed in India. Now, the pace was accelerated by 1870. So by 1870, so in India by 19th century, we have large or industries were at the peak. So now when industries were at the peak, exploitation was very high. Owing to this exploitation, the philanthropists, the leaders, the workers itself, they came for workers in the self, the workers who were leader, they came forward against this exploitation and they started protesting against the government, or rather let's say employer, not government, employer. Now against this process, the first committee, so first factory commission was formed, and as a result of first factory commission which was formed in 1875, the first Factories Act of 1881 came into the existence. So the first Factories Act of 1881 was not only the result of this philanthropist and social worker who were fighting for the laborers or the workers, but even because of the Lancashire manufacturers in Great Britain. Now, what is this? This is also a question which is asked in exam. Why it is a joint effort? The first thing is exploitation. Another thing is, since in India, labor was very cheap. Now, why labor was cheap? No facilities to the labor, no provisions for the labor. So the labor was very cheap. And over and above this cheap labor, Indian textile were of high quality, and they started giving a competition to the textile manufacturers located at Lancashire in the Great Britain. Now these manufacturers were worried. They got worried that if Indian textile industries start competing with the Great Britain and other industries, we won't be able to survive. So these manufacturers went to the Great Britain leaders, or you can say they came to India and they approached the leaders, the government, and said that take some steps so that this Indian textile does not compete. In order to increase the value of this labor, in order to make it more costly, since the quality was good, available at the cheap prices, they were competing. So in order to make it costly, the labor provision or labor laws came into the existence. The first one was the Factories Act of 1881. Am I clear? Am I clear? स्नेहा, कुछ चीजें होती है ना, ये जो लिखा गया है बुक्स के अंदर में 50 years old या 25 years old या 100 years old, ये बुक के हिसाब से, बुक्स में जो कंटेंट दिया है वो, तो हम ऐसे प्रैक्टिकल या लॉजिकल काउंटिंग नहीं कर रहे हैं. जो बुक के अंदर में दिया है वो कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम वैसे ही याद करेंगे. ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, सो 1881 लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आया ये आपको पता होना चाहिए.
and our law is similar to that of the Great Britain, patterned on the British law, since we were in the influence of the Britishers. The only difference is, in Indian Factories Act we have a detailed provisions for hours of work of adult male worker and the annual leaves with wages. We have a very detailed provision. However, the UK's law doesn't contain this. So the bill related to the main 1948 was introduced as a recommendation of Royal Commission. ठीक है, Royal Commission की recommendation थी. There were changes which were supposed to be brought, and as a result the bill was passed on 28 August 1948, and it got its assent by the Governor General on 23rd September 1948, and the law is being followed till now in our country. ठीक है, दिस इज द हिस्ट्री. नाउ वी वुड बी स्टडीइंग द ग्रोथ. क्या एग्जाम में आपको ग्रोथ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? तो 80-81 से रिलेटेड पूछा जा सकता है. डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ईयर में कौन सा लॉ आया, कितने सालों बाद कौन सा लॉ आया. तो द सीक्वेंस कैन बी आस्क्ड फॉर द जून आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर अदर वन लाइनर क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट के बाद में सेकंड लॉ कितने सालों के बाद में आया. यस, समवन इज रेजिंग द हैंड. रोहिणी. यस रोहिणी, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Hello ma'am, sorry, by mistake just clicked the button. So please disconnect from your side, because Yes I ma'am. have disconnected. Okay, now how the growth of factories legislation happened in India, how the factories have grown in India. As I told you, it was the Factories Act of 8081. 8081 का पहला लॉ था जो इंडिया में एग्जिस्टेंस में आया, जो रिजल्ट था जॉइंट एफर्ट फिलेंथ्रोपिस्ट, सोशल वर्कर और लैंड कैशुअल मैन्युफैक्चरर्स के एफर्ट्स की वजह से. दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द फैक्ट्रीज कमीशन जो 1875 में बनाई गई थी. ठीक है, फोकस क्या था और ये लॉ कहां पे एप्लीकेबल था? 8081 Act was applicable to those establishment which were called as manufacturing establishment, जहां कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, employing 100 or more people. कितने? 100 or more people using mechanical power for the 4 months in a year. अभी जितने भी हम लॉ पढ़ते हैं, यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं? प्रीसीडिंग 12 months, यानी पिछले 12 महीने कंटेंट या 12 महीने की क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं. लेकिन जब ये लॉ एग्जिस्टेंस में आया था, इसने कहा था कि पिछले 4 महीनों में जहां पे 100 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते आ रहे हैं मैकेनिकल पावर को यूज करके, वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा. द एक्ट रेगुलेटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर ओनली, सो इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन चाइल्ड. तो यहाँ पे चाइल्ड से रिलेटेड प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया. Employment below 7 years, children below the 7 years were completely prohibited, and the hours for the children between 7 and 12 years were fixed at 9 hours a day with an interval of 1 hour for rest and a weekly holiday. Now imagine the pathetic situation at that point of the time, that children below even 7 were prohibited. Means there were the cases where children below the 7 years were also working. That is the reason why this prohibition came. So still we were not so developed that we can prohibit the children above 7 years. Still above 7 years, between the 7 and 12 years, they were allowed to work for 9 hours a day. Right? Still we were not developed. Still we had many loopholes in this law. So the first law 8081 came up with the provisions of the child. उन्होंने कहा 7 साल से नीचे बच्चों जो भी हैं वो completely prohibited हैं. 7 से 12 साल के बच्चों के लिए जो hours हैं वो 9 hours maximum है दिन के. साथ उनको 1 घंटे का इंटरवल मिलेगा और वीकली हॉलीडे मिलेगा. They were also granted 4 holidays in the month.
अदर देन वीकली हॉलीडे 4 छुट्टियां मिलेगी. द एक्ट ऑल्सो कंटेन्ड द प्रोविजंस रिलेटेड टू सेफ्टी एंड द इंस्पेक्शन ऑफ द फैक्ट्री. तो 80-81 किस पे फोकस करता था? चिल्ड्रन के ऊपर करता था. अब 80-77 में एक नागपुर हैंड्स मिल, ठीक है, वहां पे स्ट्राइक हुआ एंड देयर वर स्ट्राइक कंटिन्यूअसली हैपनिंग. एज अ रिजल्ट अगेन इन 1891 आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years न्यू लॉ केम. अमेंडमेंट, नॉट एक्चुअली, हम नया लॉ नहीं कहेंगे, अमेंडमेंट हुआ 80-81 के बाद 80-91 में इंप्रूवमेंट लाया. सो क्या था इसके अंदर में और ये किसकी रिकमेंडेशंस थी? सो जो फैक्ट्री कमीशन, एक दूसरी सेकेंड फैक्ट्री कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1890. सो बेसिकली ये 1819 नहीं था, 80-85 है. सो अगेन डिफरेंट बुक्स हैव गॉट डिफरेंट फिगर्स. इसका करेक्ट फिगर जो है जिस ईयर में इसको बनाया गया था वो 80-85 था. सेकेंड फैक्ट्रीज कमीशन, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 80-81 वाज अमेंडेड इन ईयर 1891. अब इसके अंदर में क्या चेंजेस लाए? हमने पहले लॉ में पढ़ा कि जहां 4 महीनों के अंदर में अगर 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते आ रहे हैं वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होगा. यहाँ पे the undertakings as manufacturing establishment where 50 or more persons, अब 100 से कम कर दिया गया 50, यानी जहां 50 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा. प्लस लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है इफ दे फील इट इज टू बी अप्लाइड, अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे फैक्ट्री में लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, it even can make a law applicable to those factories where lesser than 20 people are working. ये पावर किसके पास थी? लोकल गवर्नमेंट के पास थी. चाइल्ड की नई डेफिनेशन आई. A child was defined as a person who is below the 14 years of age. If you have the question in the exam कि चाइल्ड की डेफिनेशन को कब डिफाइन किया गया? 1891 में. कौन सी एज? 14 years of age. Here the children below the 9 now were completely prohibited. 7 से 9 पे आ गए. और मैक्सिमम आवर्स बिटवीन 9 to 14, पहले था 7 to 12, इनके लिए फिक्स किया गया था 9 hours. अब यहाँ पे 9 से 14 के बीच में फिक्स किया गया 7 hours a day with an interval rest of half an hour. The act completely prohibited night work for the women and children. एक नया प्रोविजन आया, prohibition of the work at night for the women and children from 8 PM to 5 AM. तो यहाँ पे women पे फोकस किया गया. It also restricted the work of women to 11 in a day. 11 hours a day काम करेंगे women's, और 1.5 hour और less जितना काम किया उस हिसाब से उनको इंटरवल दिया जाएगा. Adult men were allowed 1 holiday every week, daily rest of half an hour. तो इंप्रूवमेंट क्या हुआ 10 साल बाद? 10 साल बाद बहुत सारे चेंजेस आए. 100 से 50 हो गया, ठीक है. 50 के बाद में एज की क्राइटेरिया को, चाइल्ड की एज की क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया. 7 से 9 आ गए हम प्रोहिबिशन पे, ठीक है. वर्किंग आवर्स 9 से 7 पे आ गए. वुमेन्स और बच्चों के लिए कंप्लीट नाइट वर्क प्रोहिबिट कर दिया गया. वुमेन्स के लिए 11 आवर्स फिक्स किए गए. अडल्ट वर्कर्स को हॉलीडे एवरी वीक और डेली हाफ एन आवर रेस्ट दिया गया. एम आई क्लियर? शुड आई कट शॉर्ट द एक्सप्लेनेशन और यू आर ओके विद दिस? शुड आई कट शॉर्ट द एक्सप्लेनेशन? एम आई गोइंग वेरी डिटेल्ड? नेक्स्ट, अब द फैक्ट्रीज, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1911. अब हमारे 1911, ठीक है. दिस लॉ तो 80-81, 80-91, अब 1911. इसके बाद फिर 10 साल बाद दिस 21. प्लीज रिमेंबर द सीक्वेंस. जो जो मैं लिख रही हूं आप उसको वैसे ही याद रखेंगे तो सीक्वेंस याद रहेगा. 1911 एक कमीशन बनाई गई थी स्पेशली फॉर टेक्सटाइल. जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी उन्होंने कमीशन बनाई थी टेक्सटाइल वर्कर्स के सेफ्टी और प्रोविजंस के लिए.
सो टेक्सटाइल कमीशन जो बनाई गई थी 1906 में, और फैक्ट्री लेबर कमीशन जो 1907 में बनाई गई थी, इसको आप समझ सकते हैं थर्ड कमीशन थी। ठीक है, इन दोनों की कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो हमारा 1891 का जो लॉ था उसमें अमेंडमेंट की बात की गई। सो व्हाट वेर द चेंजेस एडेड बाय दिस अमेंडमेंट? द एक्ट कवर्ड नाउ सीजनल फैक्ट्रीज। इस लॉ के थ्रू अब सीजनल नॉन सीजनल का डिफरेंस समझाया गया और रादर सीजनल को कवर किया गया। सो सीजनल फैक्ट्रीज कौन सी थी? सीजनल फैक्ट्री वर्किंग लेस देन 4 मंथ इन अ ईयर। क्या डेफिनेशन है यहाँ पे सीजनल? यानी जो फैक्ट्री साल में 4 महीने से कम काम करती है उसके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। मैक्सिमम 12 आवर्स वेयर फिक्स्ड फॉर द अडल्ट वर्कर्स and 6 hours were fixed for the children in the textile, specifically textile में। Other cases में 7 was for the children and women के लिए 11। तो हम 80-81 में कितने आवर्स थे? 9 आवर्स। 1891 में कहां पे आ गए? 7 आवर्स पे आ गए। अब 11 में टेक्सटाइल वालों के लिए जो आवर्स फिक्स किए गए वो 7 थे। अदर देन टेक्सटाइल के लिए भी 12 आवर्स किए गए, 6 आवर्स किए गए टेक्सटाइल। चिल्ड्रन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, चिल्ड्रन की, ठीक है। और अदर देन टेक्सटाइल के लिए 7 ही रखा गया। वुमेन्स के लिए भी 11 ही रखा गया जो पहले से फॉलो किया जा रहा था। प्लस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन वेयर प्रोहिबिटेड, ठीक है, ऑफ बिटवीन 5:30 AM टिल 7 PM। इसके पहले क्या था? 8 PM। यहां पे अगर हम देखेंगे 8 PM, इसको बस बढ़ा दिया गया और इसको कर दिया गया 7 PM। यहां पे भी 5:30 कर दिया गया। ठीक है, ये चेंजेस आए। प्लस एक नई चीज ऐड हुई, चिल्ड्रन वेयर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1911 पे। एंड द वुमेन एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोहिबिटेड, चिल्ड्रन वुमेन एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोहिबिटेड इनटू द डेंजरस प्रोसेसेस। ठीक है, टेक्सटाइल कमीशन और फैक्ट्री कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1911 का आपका अमेंडमेंट आया जो कि फोकस कर रहा था टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए। अब उसके बाद में आया 1922, 21 नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैंने 21 वहां पे बोला था, 22 है। ठीक है, सो 81, 1891, 1911 और 1922 याद रखते जाएंगे, पॉइंटर्स याद रहेगा। 1922 में सबसे बड़ा चेंज हुआ, यहां हमने सीजनल डिफाइन किया, जहां लेस देन 4 महीने अगर वो काम कर रहा है तो वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। 1922 अमेंडमेंट मेड दिस लॉ एप्लीकेबल इवन टू द इंडिविजुअल अंडरटेकिंग, यानी कोई एक ऐसी फैक्ट्री जो इंडिविजुअली रन हो रही है, एक इंडिविजुअल पर्सन रन कर रहा है एंड ही इज एम्प्लॉइंग 20% और मोर, 10, 20 या उससे ज्यादा लोग अगर वहां काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल अंडरटेकिंग, द लॉ वुड बी एप्लीकेबल। प्लस लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई दैट इफ दे फील दे कैन अप्लाई दिस लॉ एम्प्लॉइंग इवन टू द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन, 10 पे आ गए हम। ठीक है, अडल्ट वर्कर्स इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन वेर नॉट अलाउड टू वर्क मोर देन 11 आवर्स अ डे। अब सभी के लिए, चाहे मेन हो या वुमेन हो, मैक्सिमम आवर्स पूरे दिन के फिक्स कर दिए गए 11 आवर्स अ डे एंड 60 आवर्स अ। यहां पे चाइल्ड की डेफिनेशन को 14 ईयर्स से चेंज करके 15 ईयर्स कर दिया गया एंड द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स वेर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। 12 साल के नीचे वाले प्रोहिबिटेड हैं। 12 से 15 साल के बीच के जो बच्चे हैं, दे फिक्स्ड 6 आवर पर डे। तो यहां पे था हमारा 9 आवर्स, यहां पे थे हम 7 पे, यहां पे भी हम 7 पे ही थे, यहां 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। यहां पे हमने पढ़ा था फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना है चिल्ड्रन के लिए, जरूरी है। यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सर्टिफाइंग एज
एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ द चिल्ड्रन. सर्टिफाइंग, यानी आप कोई भी फिजिकल फिटनेस ऐसे ही नहीं लाके दे दोगे अपने हिसाब से, नहीं. यहाँ पे अब आपका एग्जामिनेशन होगा बच्चों का, वो प्रूफ करेगा वेदर यू आर फिजिकली फिट और नॉट. All workers were given at least 1 hour of rest for work exceeding 6 hours. हमारा जो 1948 का लॉ है वो कहता है 5 घंटों के बाद में एटलीस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक देना चाहिए. 22 के लॉ में 6 आवर्स से अगर आपका काम एक्सीड हो रहा है उसके बाद आप 1 घंटे का इंटरवल देंगे. There were also allowed 1 holiday in a week. No worker was to go without holiday for 10 days. सेम 48 में भी फॉलो होता है कि 10 दिन लगातार काम, इससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा, उसके बाद आपको कैसे भी उनको छुट्टी देना. ओवर टाइम की बात की गई. ओवर टाइम दिया जाएगा इन केस अ पर्सन इज वर्किंग मोर देन द मैक्सिमम आवर्स. 11 आवर्स से ज्यादा अगर वो काम करता है, और वो रेट था 1.5. अभी हमारा यूजुअली होता है ट्वाइस. ओवर टाइम में ट्वाइस देते हैं, पहले 1.5 गुना दिया जाता था. Women's employment under the 18 years of age was completely prohibited. Am I clear? What is 22 amendment? Moving to the next. 26, again there were some administrative changes and penalties were introduced. Penalties for the parents who is allowing their children to work in 2 factories on the same day. 31 में provisional government were given the power to frame the rules related to the precautionary measurement to be taken against the fire. ठीक है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के थे. अब आते हैं फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1934. रॉयल कमीशन ऑन द लेबर दैट वाज सेट अप इन 1929. इसने अपनी 1931 में क्या किया, रिपोर्ट सबमिट करी. In this report, there were the recommendations which were given by Royal Commission. As per the recommendations made in this report, amendments were to be brought. Amendment लाने थे, तो Factories Act 1934 लाया गया, यानी amendment हुआ 1934 में. This law provided it will cover all the manufacturing establishment employing 20 or more persons using mechanical power. ठीक है. 34 के लॉ ने, 1934 के लॉ ने सीजनल और नॉन सीजनल फैक्ट्रीज के बीच में डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्टिंक्शन किया कि सीजनल हम किसको कहेंगे, नॉन सीजनल किसको कहेंगे. अ सीजनल फैक्ट्री was defined as a factory working for 180 days in or less in year. 1911 के अंदर में 4 months की बात हुई थी, यहां पे है 180 days और लेस इन पूरे साल में. ठीक है, 180 डेज से अगर लेस काम किया है तो हम उसे सीजनल कहेंगे. लोकल गवर्नमेंट वाज गिवन अ पावर दैट दे कैन अप्लाई अ लॉ टू द प्रीमाइसेस वेयर देयर आर लेस एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल. चाइल्ड की डेफिनेशन वही थी 15 इयर्स वाली. एम्प्लॉयमेंट बिलो द 15 इयर्स वेयर टोटली प्रोहिबिटेड, पहले की तरह. Daily hours of work for those between 12 to 15 were now reduced to 5. 22 में 6 किया गया, अब हम उसको 5 पे आ गए, और दोनों ही केसेस में सीजनल एंड नॉन सीजनल. 34 का जो लॉ था, ये एक ऐसा लॉ था जिसने एडोलसेंट कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया. नाउ इफ यू हैव द क्वेश्चन इन द लॉ एग्जाम, which law introduced the term adolescent? It was the law of 1934. It defined an adolescent a person between the age 15 to 17. ठीक है, they were not to be employed as adult. आप उन्हें as an adult employ नहीं कर सकते until and unless they have a medical certificate of fitness, physical fitness. Daily work of women in a seasonal factories were not to exceed 10. Seasonal के केस में 11 से अब हम 10 आ गए. स्प्रेड ओवर इंट्रोड्यूस किया गया कि पूरे दिन का चिल्ड्रन के लिए स्प्रेड ओवर 7.5 है, जो यूजुअली हम लॉ में हमारा 48 कहता है मैक्सिमम 6 आवर्स हो सकता है स्प्रेड ओवर. ठीक है, 13 आवर्स फॉर द अडल्ट स्प्रेड ओवर होगा. वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर नॉट टू बी एम्प्लॉयड 6 AM और आफ्टर 7 PM.
तो हमने स्टार्टिंग करी थी 7 AM to 8 PM या 8 PM से 7 AM के बीच में आप एम्प्लॉय नहीं करेंगे, तो मैं ऐसे लिखती हूँ 8 PM to 5 AM, इसमें एम्प्लॉय नहीं करेंगे, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। उसके बाद में हम आए 7:30 PM, 7 PM नॉट 30, 7 PM to 5:30 AM, ये हुआ। अब है 6 AM to 7 PM, तो 7 PM शाम को 7 बजे से मॉर्निंग के 6 बजे तक आप एम्प्लॉय नहीं करेंगे। लोकल गवर्नमेंट के पास में पावर थी कि वो वेरी करना चाहते हैं तो वेरी कर सकते हैं। ऑल फैक्ट्रीज वेर एंटाइटल्ड टू वीकली हॉलीडे ऑन संडे, but exemption could be made as per the certain condition. However, no worker was allowed to work more than 10 days continuously. Provisions related to health and safety were introduced. 1934 के provisions clear हैं? ऐसा कोई भी है जिसे समझ में नहीं आ रहा हो? 35 में ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट नाइट वर्क फॉर वुमेन्स वेयर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट में वुमेन का नाइट वर्क कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। 40 के अंदर में हेल्थ सेफ्टी ऑब्लिगेशन, मतलब इससे रिलेटेड प्रोविजंस को अप्लाई करने का ऑब्लिगेशन प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया गया, ठीक है। Pertaining children and adolescent to the power factory employing 10 to 19%. Amendment of 1941 was again administrative. 45 was the law, very important, जो हम पढ़ेंगे। 45 was the law जिसने detailed provision for annual leaves with wages इस particular प्रोविजन और इस पर्टिकुलर सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एनुअल हॉलीडेज विद पे इन रिस्पेक्ट ऑफ पेरिनियल, पेरिनियल होता है लॉन्ग टर्म नॉन सीजनल फैक्ट्री, रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। प्रोविजन वाज मेड फॉर एनुअल पेड हॉलीडेज ऑफ 10 days फॉर द अडल्ट एंड 14 days फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। ये इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था कि 1 साल में 10 छुट्टियां अडल्ट को मिलेगी और 14 छुट्टियां चिल्ड्रन को मिलेगी, ठीक है। एंड दे कैन बी एक्युमुलेटेड, यानी एक साथ 2 साल की छुट्टियों को आप इकट्ठा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 46 में वीकली आवर्स 54 को 48 तक कंट्रोल किया गया पेरिनियल के केस में। 60 को 50 लाया गया सीजनल, यानी एक वीक में आप मैक्सिमम आवर जो अभी तक 54 चल रहा था उसे रिड्यूस करके 48 किया गया नॉन सीजनल यानी लॉन्ग टर्म फैक्ट्री के केस में, और 60 से 50 रिड्यूस किया गया सीजनल। डेली आवर्स अब यहां पे रिड्यूस किए गए फ्रॉम 10 to 9 इन पेरिनियल यानी नॉन सीजनल के केस में, और 11 to 10 सीजनल के केस में। यहां पे ये 46 का लॉ था जहां पे ओवर टाइम को ट्वाइस द रेट बना दिया गया, जो हम अभी भी यूज करते। 47 इंपॉर्टेंट was the law which gave the provisional government to come up with the provisions related to canteen in the factories employing 250 workers or more. इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? सबको क्लियर है? अब हम आने वाले हैं 1948 का जो हमारा मेन लॉ है। हमने कहां से स्टार्ट किया था? 1881 से 1891, 1911, 1922, फिर 23 एडमिनिस्ट्रेटिव था, 35 भी एडमिनिस्ट्रेटिव, 34 नहीं 26 एडमिनिस्ट्रेटिव था, फिर 34 जो कि हमारा रॉयल कमीशन का रिकमेंडेशन है जिसे आप याद रखेंगे। 35 में वुमेन्स का कंप्लीटली प्रोहिबिशन, 36 एडमिनिस्ट्रेटिव था, 41 को याद रखेंगे, 45 इंपॉर्टेंट है, 46 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 47, 46, 47, 45, 46, 47 हर साल अमेंडमेंट आए हैं। क्लियर? सीक्वेंस ईयर्स। अब हम आते हैं 1948, हमारा जो मेन लॉ है जो हम यूज करते आ रहे हैं और अभी भी यूज कर रहे हैं। So the act
फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, एनैक्टेड इन 1948। एक बात याद रखेंगे, जैसे हम 1948 लिखते हैं या हम एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923 लिखते हैं, ये वो ईयर होता है जो जो एनैक्ट हुआ, एनैक्टमेंट यानी जब ये लॉ बनाया गया था, और एनफोर्समेंट यानी जब ये अप्लाई हुआ, एप्लीकेबल हुआ, वो ईयर होता है एनफोर्समेंट। ठीक है, तो आपके जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, यहां पे जो डेट लिखी होती है वो लिखा होता है एनैक्टमेंट, टॉप में राइट हैंड साइड में एनैक्टमेंट, यानी ये बनाया गया था उस साल, उस दिन उसका कंसेंट मिला था पार्लियामेंट से, फाइनली अप्रूव हो गया था। ठीक है, और एनफोर्समेंट यानी वो डेट होता है जहां से इस लॉ को लागू किया गया, अप्लाई किया गया। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? पूजा, आपका ये क्वेश्चन था, क्लियर है? आपने मुझे उसमें पूछा था स्क्रीनशॉट में कि मैम ये क्या है, इज दिस क्लियर? जो ऊपर लिखा होता है वो ईयर होता है एनैक्टमेंट ईयर। ठीक है, यानी ये किस दिन बनाया गया, एनैक्टमेंट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से पास होके एनैक्ट होके फाइनली बन गया, और एनफोर्समेंट डेट होता है लागू होना। चलो, सो द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 इज अ सोशल लेजिस्लेशन। एक बात याद रखेंगे, जितने भी हमारे लेबर लेजिस्लेशंस हैं, ये सारे हमारे सोशल लेजिस्लेशंस भी हैं। ठीक है, क्यों हम इन्हें सोशल लेजिस्लेशन कहते हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द इम्प्रूवमेंट वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, सोसाइटी, वर्कर के बारे में, इसलिए सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। So it is a social legislation enacted to consolidate and amend the law relating to workers working in the factories against the health hazard. ठीक है, ये वो लॉ है जो कि रेगुलेट करते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स इससे, ये वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, रेगुलेटिंग। हमारे पास में 4 तरीके के लॉज हैं, या अगर अब हम कोड्स की बात करेंगे तो हमारे पास में अभी 4 तरीके के कोड्स हैं नए वाले, जो हमारे प्रिवेंटिव हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव या जिसे हम प्रोटेक्टिव कहते हैं, OSHW, ये हमारे सारे प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव हैं। जो हमारे वेलफेयर वाले होते हैं, ठीक है, वेलफेयर वाले लॉज होते हैं। फिर हमारे सोशल सिक्योरिटी के लॉज हैं, और फाइनली हमारे रेगुलेटिव। ये टर्म रेगुलेटिव का मतलब होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन को रेगुलेट करना। रेगुलेशन का मतलब क्या है? अब इस टर्म को थोड़ा सा समझिए। यहां है रेगुलेटिंग दी वर्कर्स वर्किंग, रेगुलेशन, रेगुलेट करना यानी लॉ अप्लाई करना, रूल्स अप्लाई करना। ठीक है, ऑर्डर्स अप्लाई करना, लॉ अप्लाई करना। जब हम रेगुलेटिव लॉ की बात करेंगे इस कैटेगरी में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये हमारे रेगुलेटिव लॉ को कवर करता है। इसमें 3 ही लॉ आते हैं, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। इन तीनों लॉस का काम क्या है? रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। आई बात समझ में आए? यानी एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, उसके ऊपर लॉ लगाना, रूल लगाना, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको लॉ के थ्रू, रूल के थ्रू कंट्रोल करना, ताकि वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना कर सके, एम्प्लॉयर अपनी आर्बिट्री डिसीजंस ना ला सके, एम्प्लॉय अपने स्ट्राइक्स और स्ट्राइक्स या मिलिटेंट नेचर से एम्प्लॉयर का नुकसान ना करे। तो कंडीशंस लगाना कि आप एम्प्लॉयर हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें सेफ्टी मेजर्स देंगे, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दी लॉ ने, तो ये रेगुलेट कर रहा है बिहेवियर लेबर एम्प्लॉयर का। इसी तरीके से एम्प्लॉइज के ऊपर, ट्रेड यूनियंस के ऊपर लॉ लगाना कि आप ट्रेड यूनियन हो, बढ़िया बात, आप एम्प्लॉइज साथ में आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके ऊपर ये लॉ लगता है, ऑब्लिगेशन लगता है, रूल लगता है कि अननेसेसरी आप जाके स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते।
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता है कि अगर आपको स्ट्राइक या लॉकआउट, स्ट्राइक करना है, सॉरी नॉट लॉकआउट, अगर आपको स्ट्राइक करना है, आपको उनसे बात करनी है, तो हमारे पास में लॉ है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रेगुलेट रिलेशन को रेगुलेट करने का काम रेगुलेटिव लॉस करते हैं, जो हमारे आईआर कोड में कवर होते हैं, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर। तो अब ये प्रोटेक्टिव, जितने भी आप प्रोटेक्टिव लॉ पढ़ोगे ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, प्रिवेंटिव एंड रेगुलेटिव, उसमें वो टर्म आता है रेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने तो रेगुलेटिव में 3 ही बताए थे। अब याद रखेंगे कि ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है रेगुलेटिंग, प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव, अब ये जो प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव लॉ होते हैं वो लॉ होंगे जहां सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर मेजर्स दिए गए हैं। हमारा प्लांटेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, इक्वल रेमरेशन एक्ट, उसके बाद में डॉक एंड वर्कर्स, ये सारे लॉस के अंदर में ये रेगुलेट, यहां रेगुलेशन जो है वो वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन पे है। यहां पे जो लॉ लग रहा है वो किसको रेगुलेट कर रहा है? वो रेगुलेट कर रहा है कि वर्कर्स किस कंडीशन में काम करेंगे। आप अपने एज एन एम्प्लॉयर, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप अगर सेफ्टी मेजर्स दे रहे हो, हेल्थ मेजर्स दे रहे हो, तो लॉ के हिसाब से दोगे, अपने हिसाब से नहीं चलाओगे। Am I clear? What is regulative? What is OSHW, रोहिणी? सबको क्लियर हो गया? OS ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड है। हमारे 4 जो कोड है ना रोहिणी, उसमें से ऑक्यूपेशन हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर से रिलेटेड जो कोड है 22, उसके अंदर में लॉज हैं जिनको कवर किया गया है। क्लियर? बेसिक है, वो बहुत बेसिक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। रेगुलेटिव, ये वर्ड का मतलब समझ में आया? क्योंकि जब आप आंसर करते हो ये रेगुलेटिव ही कंफ्यूज कर देता है, मैम यहाँ पे भी रेगुलेटिव लिखा है, वहां पे भी रेगुलेटिव लिखा है। अब रेगुलेशन का मतलब समझ में आया? तो एक कीवर्ड मैं आपको बताती हूं कि प्रोटेक्टिव लॉज कौन से होते हैं। प्रोटेक्टिव लॉज या प्रिवेंटिव लॉज वहां वो होंगे जो रेगुलेट करेंगे वर्किंग कंडीशंस को, जहां रेगुलेटिंग द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, इंटरस्टेट हो, सारी चीजें। होल्ड ऑन रोहिणी, मैं अभी आपको आंसर कर रही हूं। सबको बाकी चीजें समझ में आई? प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग मी। मेरे को, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं तो मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे अंटिल, फिर मेरे को जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की। आप मुझे रिप्लाई करेंगे एटलीस्ट कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। इट्स नॉट फॉर मी, आई अंडरस्टैंड, मेरे को तो ये अच्छे से पता है। आप नहीं बताएंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मेरे को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वाई शुड आई टेक सच एफर्ट्स? अब देखो सोशल वेलफेयर क्या है, वेलफेयर लेजिस्लेशंस क्या है, वो पॉइंट हम आते हैं, उस पे हम आते हैं। आज का क्लास केवल बेसिक क्लियर करने में जा रहा है। देखो सोशल की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर क्या होता है। जो हमारे लेबर लेजिस्लेशंस हैं, लॉज हैं, लेजिस्लेशन का मतलब क्या? लॉ। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं कोड्स। कोड सिंपली इट सिंपली मीन्स लॉ। हमने कोड में क्या कर दिया? कोड बना दिए। कोड बना दिए मतलब जितने भी हमारे लॉज थे हमने एक कोड में उनको अमेलगमेट कर दिए हैं, उनके प्रॉपर्टीज या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अगर आप आईआर कोड की बात करेंगे तो उसके अंदर सारे रेगुलेटिव को कवर कर दिया गया है। अगर हम कोड्स ऑन वेजेस की बात करेंगे तो वहां पे सारे वेजेस से रिलेटेड लॉस को कवर किया हुआ है ना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर कोड के अंदर में सारे वो सारे लॉ हैं जो कि रेगुलेट करते हैं वर्कर्स की कंडीशंस को। प्लांटेशन हो गया, डॉक वर्कर हो गया, या किसी भी तरीके का लॉ जो वर्कर की सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर की बात करता है। जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, याद ये देखो, जब ये लॉ बनाए गए या लेबर लेजिस्लेशन एग्जिस्टेंस में आए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था?
इनका ऑब्जेक्टिव था सोशली एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट करना, उनकी वेलफेयर करना, उनका वेलफेयर करना। जैसे अगर हम एम्प्लॉयज कंपनसेशन की बात करेंगे या वर्कमेंस कंपनसेशन बोल लो, पहले उसे वर्कमेंस कंपनसेशन बोलते थे, फिर उसे रीनेम करके वर्कमेंस कंपनसेशन कहा गया। 1923 में ये लॉ बना था और ये लॉ एज एन वेलफेयर लेजिस्लेशन से एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, जो कि एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी है। अब ये सोशल सिक्योरिटी की टर्म थोड़ा सा लेट आई, उसके पहले टर्म आई वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि अदर देन सैलरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां नहीं खत्म हो जाती कि मैं तो पैसे दे रहा हूं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम करवा रहा हूं मैं, उसके बदले उसको पैसे दे रहा हूं, नहीं। एज एन एम्प्लॉयर, एज एन एम्प्लॉयर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोशल जस्टिस, ह्यूमन जस्टिस को फॉलो करें, एज एन ह्यूमन ट्रीट करें। आपने उनको खरीदा नहीं है, they need to be treated as humans, they need to be treated with justice, and when you talk about justice, उनको a safe working environment देना, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट अर्न करके देंगे, तो आप उनके बारे में सोचेंगे। तो जो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट आया था वो था कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अंडर काम करने वाले अगर एम्प्लॉई की एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, ये आपकी वजह से है। आपके इधर वो काम नहीं करता तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता, आज वो नहीं है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, कम हो गई है, तो वो आपकी वजह से, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसको कंपनसेशन देने की, उसके वेलफेयर की। और जब ये वेलफेयर की बात आई, इसका मतलब आप उसे सिक्योरिटी दे रहे हैं कि आप चिंता ना करें, अगर आपका एक्सीडेंट होता है, डिसेबिलिटी होता है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। तो वर्कमेंस कंपनसेशन को हमने सोशल सिक्योरिटी की कैटेगरी में, बिकॉज आपको सिक्योरिटी मिल रही है कि अगर आपने हमारे लिए काम किया है तो ऐसे वक्त में जब आप केपेबल नहीं हो, हम आपको सैलरी देंगे, कंपनसेशन देंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए, एज इन रिटर्न आप हमारे पास लॉयल रह के काम करेंगे। इसी तरीके से फैक्ट्रीज के अंदर में जहां पे हजार्डस काम होते हैं, केमिकल यूज होते हैं, it is the employer's responsibility to take care of safety, health and welfare, उनको सेफ एनवायरमेंट देना, उनकी हेल्थ, हेल्थ में क्या आ गया, साफ पानी, यूरिन लैट्रिन साफ होने चाहिए, हेल्थ के प्रोविजंस, अगर उनको चोट लग जाती है एम्बुलेंस फैसिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों, आपका काम करते करते। वेलफेयर यानी केवल सैलरी पे बात खत्म नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो केवल अपने फिजिकल एफर्ट्स नहीं दे रहा है, वो मेंटली आकर आपको इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, वो अकेला आदमी नहीं है, उसके साथ उसकी फैमिली है, तो आप उसके वेलफेयर के बारे में भी सोचेंगे, राइट। तो इसके लिए ये क्या हो गया, ये एक सोशल, जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, जो हमारे आसपास हम एक सोशल सर्कल में रहते हैं, तो ये हमारी सोशल नीड है, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। इसकी वजह से फैक्ट्रीज एक्ट को या फैक्ट्रीज एक्ट जैसे लॉ को हम सोशल लेजिस्लेशन कहते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया वेलफेयर लॉस क्या होते हैं, जहां पे हम वेलफेयर की बात करेंगे एम्प्लॉयज की, वो वेलफेयर हो गए। सोशल सिक्योरिटी, जहां हम सिक्योरिटी देने की बात करेंगे वो सिक्योरिटी हो गई। सोशल लेजिस्लेशन, जब हाँ हम सोशल सोशल उसका डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम उसे सोशल लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है। चलो, सो नाउ ऑलरेडी टाइम हो गया है, एक और टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अब इस लॉ को हम कल ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक टर्म और आप ऐसे समझ लीजिए, वेलफेयर डिवाइड करने के लिए एक हमारी कैटेगरी होती है वेलफेयर लॉ लेजिस्लेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव, ठीक है, जिसके अंदर में रेगुलेशन ऑफ वर्किंग कंडीशंस होता है, वर्किंग आवर्स होता है, सेफ्टी हेल्थ एंड मेजर्स होते हैं, ठीक है। फिर आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है, ऐसे टाइम पे एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी देना जब वो केपेबल नहीं होते हैं, जैसे मेटर्निटी सोशल सिक्योरिटी है, कंपनसेशन एम्प्लॉयज कंपनसेशन सोशल सिक्योरिटी है, प्रोविडेंट फंड सोशल सिक्योरिटी है, ईएसआई सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, ये सारी सोशल सिक्योरिटी। इसके बाद में रेगुलेटिव हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है, मैंने रेगुलेटिव का मतलब आपको बता दिया जिसमें 3 ही लॉज आते हैं। अब वेलफेयर लॉ, वो लॉज जिसके अंदर में वेलफेयर फंड की बात हुई, जहां पे सेपरेटली एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर फंड का क्रिएशन किया जाता है, उनको वो पैसा उनके वेलफेयर के लिए दिया जाता है, ये फंड। तो जो वेलफेयर फंड होते हैं या वेलफेयर लॉज होते हैं, यूजुअली उनके नाम में ही वेलफेयर ये टर्म होता है। बट अदर देन दिस, अगर मैं फैक्ट्री एक्ट की बात करूं तो फैक्ट्री एक्ट एक प्रोटेक्टिव है, बेसिक उसका जो नेचर है वो प्रोटेक्टिव है, लेकिन ये वेलफेयर की कैटेगरी में भी आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के मेजर्स हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोटेक्टिव लॉस की सेकेंडरी कैटेगरी, अगर प्राइमरीली वो प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव है, सेकेंडरीली अगर मैं बात करूंगी तो वेलफेयर है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है फैक्ट्रीज एक्ट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, फर्स्ट ऑप्शन प्रिवेंटिव, सेकेंड इज रेगुलेटिव, थर्ड वन इज योर वेलफेयर एंड द फोर्थ वन इज योर सोशल सिक्योरिटी। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सिलेक्ट करना है तो आप प्रिवेंटिव पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है फैक्ट्रीज एक्ट बिलोंग्स टू विच कैटेगरीज ऑफ द वेलफेयर, विच कैटेगरीज ऑफ लॉ, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिवेंटिव एंड वेलफेयर, प्रिवेंटिव एंड वेलफेयर। दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंटिव एंड सोशल सिक्योरिटी। थर्ड ऑप्शन है वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। फोर्थ ऑप्शन है रेगुलेटिव एंड वेलफेयर। तो इसमें जब 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो आपको सिलेक्ट करना है प्रिवेंटिव एंड वेलफेयर। तीसरे तरीके का क्वेश्चन ऐसे हो सकता है फैक्ट्रीज एक्ट इज वेलफेयर, सेकेंड प्रोटेक्ट नॉट प्रोटेक्टिव is your regulative, third wage legislation, fourth social security। obviously यहां वेलफेयर में आएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, टर्म्स को, कंसेप्ट को समझेंगे, कहां वेलफेयर आंसर करना है, कहां प्रोटेक्टिव आंसर करना है, कहां पे सोशल सिक्योरिटी आंसर, अगर कोई लॉ सोशल सिक्योरिटी है तो। इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन 2 मार्क का 100% पूछा जाता है। That is the session for the day. Am I clear students? जो लॉ है फैक्ट्रीज एक्ट का कल पढ़ेंगे। मैंने बेसिक चीजें बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसके बाद थोड़ा ट्राई करेंगे, हम फास्ट जाएंगे। ठीक है, आई एम एंडिंग दिस सेशन, आई हैव अनदर क्लास, वी विल बी मीटिंग इन टुमारोज क्लास। पूजा, जो भी पीडीएफ है, अगर आप आरआरबी की बात कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी उसके अंदर में क्वेश्चंस डाले हुए हैं। किशोर, योर क्वेश्चन इज, आपने पूछा मुझे मैथमेटिकल का, मैथमेटिक्स का कहां से कवर करना है? कैलकुलेशन बेस्ड विल बी आस्क्ड। व्हाट कैलकुलेशन? लॉ से रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं, लॉ से रिलेटेड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस वोंट बी देयर। टू कैलकुलेट द बोनस और समथिंग, I believe no, that won't be there, RRB के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।